بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ حاضرین محفل، یہ حضور کا شجرہ نسب نامہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کا 34واں پارٹ یعنی 34ویں کڑی ہے۔ آج کا مفہوم اس شجرہ نسب نامے کا موقف یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین کون تھے۔ ایک روز مکہ معظمہ میں تمام مشرکین مکہ اکٹھے ہوتے ہیں، جن میں ابو جہل بن ہشام، ابو لہب بن عبد المطلب، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، ابو البختری، ابو سفیان بن حرب، یہ سرداران قریش میں سے بہت ہی شاطر اور بہت ہی بڑے بڑے سردار تھے۔ ان کی لاٹھی میں دھواں نکلتا تھا۔ یہ تمام قبائل قریش کے سردار کہے جاتے تھے۔ جب ہمارے حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی ہے، تو تمام یہ سرداران قریش جو تھے، یہودیوں کا ایک مولوی تھا سب سے بڑا، اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے جا کر کے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاں تولد ہوئے تھے اور ان کی کتاب توریت اتری تھی، اس توریت میں کوئی ایسا واقعہ ہو جو آپ مجھے بتائیں، ہمیں بتائیں، جو کہ ہمارے یہاں پر ہمارا ایک بھتیجا محمد بن عبداللہ نبوت کا اعلان کرتا ہے، مجھ سے یہ پوچھیں کوئی سوال ایسا، ہمیں کوئی داستان ہمیں ایسی بتائیے جس سے ہم پوچھیں تو وہ لاجواب ہو جائے، جواب نہ دے سکے اور ہم اس کے لیے جھٹلائیں کہ تو پیغمبر نہیں ہے۔ چنانچہ تمام سرداران قریش اکٹھے ہو کر ہمارے حضور نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد بن عبداللہ، تم اپنے آپ کے لیے میسنجر آف لارڈ خداوند قدوس کا نبی بتاتے ہو اور کہتے ہو اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ذوالقرنین کون تھے۔ ہمارے حضور نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے لیے جواب دیتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں اس کے بابت کل آپ کے لیے جواب دوں گا۔ چنانچہ تمام سرداران قریش چلے آتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ نے کل کا وعدہ کیا ہے آنسر دینے کا۔ چنانچہ تمام مشرکین مکہ اکٹھا ہوتے ہیں اور ہمارے حضور سے فرماتے ہیں جواب دیجئے، پلیز آنسر آف مائی کوشچن دین اٹ ول بی ویری کائنڈ آف یو، ہمارے سوال کا جواب دیں تو آپ کی بڑی بڑی مہربانی ہوگی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر نہیں ہوئے۔ روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 13 دن تک سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے۔ آپ بہت زیادہ ملول ہوتے ہیں، آزردہ ہو جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ آپ پریشانی میں ہوتے ہیں۔
आप खुदाबंद कुद्दूस की बारगाह में गिड़गिड़ा करके इल्तमास करते हैं, दुआ फरमाते कि ऐ बारेला, ये सरदारान कुरैश, ये मुशरिकीन मक्का ने मुझसे जो आंसर मांगा है, मुझ पर वही नाजिल नहीं हो रही है, इनका जवाब मैं कैसे दूं। चुनाचे 13वें दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह अक़दस में हाजिर होते हैं और फरमाते हैं, खुदाबंद कुद्दूस आपको बाद सलाम के फरमाता है, यह मेरे महबूब, मुशरिकीन मक्का कह रहे हैं कि आप झूठे हैं, आप झुठला दिए गए, आप कहते हैं हम पैगंबर हैं, खुदाबंद कुद्दूस एक है, और आप ये हमारा तुच्छ सा जवाब एक स्मॉल स्टेज कैरेज का आंसर आप नहीं दे सके कि ज़ुल्करनैन कौन थे। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाका वमा रब्बुका कला। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। ऐ मेरे महबूब, हमने तुम्हें छोड़ नहीं दिया, आप झूठे नहीं हैं, आपने मुश्किलों से वादा किया था कि कल जवाब दूंगा, तो आपने इंशाअल्लाह का लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया। गरज अब भविष्य में फ्यूचर में कोई भी बात बताया करें तो इसको उसमें इंशाअल्लाह का लफ्ज जरूर जोड़ लिया करें, इंशाअल्लाह जरूर ऐड कर लिया करें। ये वजह थी जिब्रील अलैहिस्सलाम के ना आने की। चुनांचे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और सिकंदर ज़ुल्करनैन के बारे में डिटेल वाइज तफसील से हमारे सरकार के लिए बताते हैं। हमारे हुजूर काफिरों के लिए जवाब देते हैं कि सिकंदर ज़ुल्करनैन एक मुल्क था अस्कंदरिया, वहां पर तवल्लुद हुए, इसलिए आपकी वजह तस्मिया सिकंदर है, और करण मानी गोशे के हैं, और करनैन मानी गोशे से गोशा, यानी कमान के दो गोशे से गोशा यानी सिरे से सिरे मिल जाए तो उसके लिए करण कहते हैं। और जुल का मतलब है हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह में हुजूर की 2 साहबजादियां थे, इसलिए आपको जुल नूरैन कहा जाता है। और आपने मुल्क हबशा को भी हिजरत फरमाई और मदीना मुनव्वरा को भी आपने हिजरत की, तो आपको जुल हिजरतैन कहा जाता है। इसीलिए सिकंदर ज़ुल्करनैन के लिए ज़ुल्करनैन कहा जाता है, क्यों आपने मशरिक से लेकर जहां सूरज निकलता है और जहां सूरज गुरूब होता है वहां तक आपने सफर किया है, तो आपके लिए ज़ुल्करनैन का लक़ब दिया जाता है। यानी आप हफ्तम अक़लीम के बादशाह थे। हफ्तम अक़लीम के बादशाह उसे कहते हैं जिसकी जहां से सूरज निकलता हो, जहां गुरूब होता है वहां तक बादशाहत हो, उसके लिए हफ्तम अक़लीम की बादशाहत कही जाती है। तो हफ्तम अक़लीम की बादशाहत 4 लोगों की हुई है, 2 मोमिन है, 2 काफिर। मोमिनों में हजरत सिकंदर ज़ुल्करनैन और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और काफिरों में नमरूद बादशाह और बख्त बिन नुसर, 2 काफिर बादशाह हैं और 2 मोमिन हैं, जिन्हें हफ्तम अक़लीम की यानी जहां से सूरज निकलता है जहां गुरूब होता है वहां तक की बादशाह अल्लाह ताला ने इनायत फरमाई थी। तो हजरत ज़ुल्करनैन और हजरत ख्वाजा खिज़र ये दोनों हकीकी भाई हैं। ज़ुल्करनैन का नाम अब्बास या हर्ष या अब्दुल्लाह था, लेकिन आपकी वजह तस्मीय ज़ुल्करनैन थी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जो कि आपका नाम अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान है, तो आपके लिए खिज़र अलैहिस्सलाम आपका टाइटल है। तो हजरत ज़ुल्करनैन और खिज़र अलैहिस्सलाम हकीकी भाई हैं। सिकंदर ज़ुल्करनैन ने तमाम मगरबी हिंदुस्तान, तमाम मगरबी दुनिया फतह करके यहाँ से सूरज गुरूब होता है वहां से लेकर के आप अफ्रीका, अमेरिका, जजीरा रोडस, कब्रस, फ्रांस, शाम, दमिश्क, रोम, यूनान, गौर, गजनी, काबुल, कंधार, पेशावर हिंदुस्तान की सरहद पर आ जाते हैं।
जब हिंदुस्तान के बॉर्डर पर आप खेमजन होते हैं और हिंदुस्तान के बादशाह पर चढ़ाई आप करना चाहते हैं तो खेमजन हो जाते हैं। आप हिंदुस्तान के बॉर्डर को देखते हैं यहाँ का बादशाह कैसा है, कितना आकिल व बालिग है। चुनाचे आप हिंदुस्तान के शाह हिंद पर आप डेरा डाल के फौज कशी कर देते हैं, फौज के लिए वहां रोक देते हैं और एक एलची भेजते हैं, एक सफीर भेजते हैं शाह हिंद की खिदमत में। वो सफीर जाता है तो सफीर के लिए सिकंदर जुल्करनैन एक रोटी पर घी लगा करके भेजते हैं। चुनाचे जब एलची शाह हिंद के दरबार में जाता है तो शाह हिंद उस रोटी पर एक सुई रख करके वापस कर देता है। एलची वापस चला आता है। फिर हजरत सिकंदर जुल्करनैन उस सुई के लिए आग में तपाकर और उस रोटी पर भेज देते हैं वापस। शाह हिंद वापस में जो है उस रोटी पर एक आईना रख करके भेज देता है। एलची जब आता है और बादशाह से कहता है कि हुजूर आपका भेद, आपका मुअम्मा कुछ समझ में नहीं आया कि आपने क्या कहा और उसने क्या जवाब दिया। तो जुल्करनैन कहते हैं कि मैंने बादशाह के लिए रोटी और घी भेजा था इसलिए कि इल्म और हिकमत इस तरीका से है जैसे कि घी और रोटी, रोटी के बगैर घी बेकार है और घी के बगैर रोटी बेकार है। तो मैंने उसके पास ये सवाल भेजा था कि तेरे पास कुछ इल्म और हिकमत है, तो उसने रोटी के ऊपर सुई रखती और ये कहा मेरे पास इल्म और हिकमत इस तरीके से है जैसे कि सुई की मानंद, जैसे सुई इतनी मजबूत है इस तरीका से मेरे पास इल्म और हिकमत है। जब मैंने उस सुई को गर्म करके वापस भेजा फिर उसके पास में कि इल्म और हिकमत तो है लेकिन अगर अकल नहीं तो इल्म और हिकमत सब कुछ बेकार है, इसलिए मैंने सुई गर्म करके भेजी थी। तो बादशाह ने उस रोटी पर आईना रख दिया था और कहता था मेरा इल्म और हिकमत इस तरीका से है जैसे कि आईना, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, यानी जो आईने में जो भी अपना चेहरा देखेगा उसके लिए वैसा ही नजर आएगा। अगर जाहिल देखेगा तो उसे जाहिल नजर आएगा और अगर काबिल और इल्म हिकमत वाला देखेगा, पढ़ा लिखा देखेगा तो उसके लिए आपका चेहरा नजर आएगा। यानी जो जैसा होगा उसके लिए अपना ही चेहरा नजर आएगा। तो मैंने वो आईना रख दिया रोटी के ऊपर। तो जुल्करनैन कहते हैं कि उसका मतलब, उसका भेद ये है। चुनाचे सिकंदर जुल्करनैन एक एलची एक सफीर के लिए भेजते हैं बादशाह हिंद के पास में कि तू मेरी इताअत कबूल कर, तू आकिल व बालिग है, मेरी इताअत कबूल कर, जंग करने से कोई फायदा नहीं, मेरे लिए बस खिराज चाहिए और बादशाह तू चला। बादशाह एग्री हो जाता है, एक्सपेक्ट कर लेता है आपकी शर्त के लिए। हजरत सिकंदर जुल्करनैन हिंदुस्तान से अपना काफिला लेकर के मशरिक की तरफ जाते हैं, यहाँ के सूरज तुलू होता है। जब वहां पहुंच जाते हैं वो वहां पर एक बादशाह था उसने देखा कि सिकंदर जुल्करनैन आ चुके हैं मुझ पर चढ़ाई करने के लिए, तो आपकी बारगाह में काफी हदिया और ताइफ भेजता है और फरमाता है कि हम आपके इताअत गुजार हैं, आपके फर्मा बरदार हैं, हमें आपकी बादशाहत कबूल है, हम आपके लिए खराज टैक्स तावान देते रहेंगे। चुनाचे वो आपकी बादशाहत के लिए एक्सेप्ट कर लेता है, कबूल फरमा लेता है और सिकंदर जुल्करनैन से कहता है कि हुजूर हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमारे ये पहाड़ हैं, इनके बीच में जो रास्ता है, जो दर्रा है, यहाँ से ये पहाड़ों के पीछे एक कौम ऐसी बसती है जिसके लिए आजून और माजून कहते हैं। तो आजून माजून 120 फीट लंबे हैं और कोई कोई उनमें 60 फीट का है, कोई कोई एक एक बालिस्ट का है। ये 3 कैटेगरी की कौम है आजून माजून की। तो वो उनके कान इतने बड़े हैं कि एक कान बिछाते हैं और एक कान ओढ़ लेते हैं। वो हैवानों की तरह रहते हैं, नंगे रहते हैं, कपड़ा नहीं पहनते और हैवानों की तरह जमा करते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, मुबाशरत करते हैं। चुनाचे वो उनका खाना गोश्त और मछली है। अल्लाह ताला के हुक्म से मछली की बारिश होती है और वो खाते हैं। जब मछली उन्हें नहीं मिलती तो हमारे मुल्क में दर्रा के जरिए आते हैं और हमारे मुल्क में बर्बाद करते हैं, पब्लिक के लिए मारते हैं, तमाम बागात मेवात जो भी फसल है उसके लिए चौपट करके चले जाते हैं। हम बहुत ही परेशानी में हैं। वी आर वेरी इन दी डिफिकल्टी, वी आर वेरी प्रॉब्लम, वी आर वेरी गिल्टी। हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमारी इस परेशानी के लिए आप सॉल्व कर दीजिए। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत जुल्करनैन फरमाते हैं कि एक लोहे की कान है
अपने अवाम के लिए, और हमारी भी फौज जाएगी उस लोहे की कान से लोहे की सिलें लेकर के आए तख्ते, और वही एक कान तांबे की है उसे लेकर के आए। चुनाचे जब पब्लिक, जब उसके बादशाह की फौज, बादशाह के अवाम जब बुलाती है लोहे की सिलें, और इनकी जुल्करनैन की फौज भी जाती है, तो फिर उसके लिए हजरत सिकंदर जुल्करनैन जो है दर्रा के बीच में एक दीवार बनाते हैं लोहे की, और बीच में दीवार को कहते हैं कि 300 गज लंबी थी और 30 गज चौड़ी थी दीवार। तो दीवार जो है लोहे की सिलें बनाने के बाद में जो तांबा मंगवाते हैं, तांबे के लिए गर्म करके पिघला करके उस दीवार के बीच में डाल देते हैं, और इधर उधर लोहे की वो सलाखें हैं, सिलें हैं, और बीच में तांबा पिघला करके डाल दिया जाता है, एक दीवार बना देते हैं आप, इसलिए कि वो आजून माजून की जो भी फौज है, जो भी वो आजून माजून पब्लिक है, वो इधर के लिए ना रास्ता क्रॉस कर चुके हैं। चुनाचे आप एक दीवार बना देते हैं। आपका एक फरिश्ता दोस्त था राहिब नाम का, आप वो जो फरिश्ता आता है तो उससे फरमाते हैं कि आपके यहाँ अर्श पर, आसमानों पर किस तरीका से इबादत होती है? तो फरिश्ता कहता है हमारे यहाँ अल्लाह ताला की इबादत होती है। कोई फरिश्ता कयाम में है तो कयामत तक कयाम में ही रहेगा, कोई फरिश्ता सजदे में है तो कयामत तक सजदे में रहेगा, कोई फरिश्ता रुकू में है तो कयामत तक रुकू में ही रहेगा। इस तरीके से अल्लाह ताला की इबादत कयामत तक हर फरिश्ता करता रहेगा, एक ही आइटम, एक ही चीज करता रहेगा कयामत तक। तो सिकंदर जुल्करनैन फरमाते हैं मेरी भी तमन्ना, मेरी भी चॉइस ये है, मैं भी अल्लाह ताला की इबादत कयामत तक करूं, लेकिन जिंदगी वफा नहीं करेगी। ऐसा कोई तरकीब, ऐसी कोई चीज है जो कि कयामत तक जिंदा रह सकूं? चुनाचे फरिश्ता कहता है कि ये आगे जजीरा के आगे पहाड़ है, उनके आगे जजीरा है, उनके आगे एक गुफा है 30 कोस लंबी जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, उसके पार कई चश्मे हैं, तो उसमें से एक चश्मा जुल्मात यानी आब हयात के नाम से है, उस चश्मे में आब हयात बह रहा है, जो शख्स उस आब हयात को पी लेगा वो कयामत तक जिंदा रहेगा। चुनाचे सिकंदर जुल्करनैन अपनी फौज के लिए हुक्म देते हैं, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की रहबरी में 4000 फौज भेजते हैं, और 2000 फौज अपने साथ रख के एक तरफ के लिए आप जाते हैं, एक तरफ के लिए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के लिए भेजते हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जुल्करनैन के हकीकी भाई हैं। चुनाचे उस फरिश्ते ने ये भी एक राज बताया था कि उस चश्मे की पहचान ये होगी आब हयात की कि आप जो भी जाए उसके लिए एक मछली मरी हुई देना, और उस आब हयात के पानी का एक भी बूंद उस मछली पर पड़ जाएगा तो जिंदा हो जाएगी। चुनाचे आप हर फौज के, हर अवाम के हाथ में एक एक मछली देते हैं मरी हुई, और तमाम काफिला हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का 4000 का चला जाता है, 2000 सिपाहियों के लेकर के एक तरफ के लिए आप जाते हैं आब हयात की खोज में। गरज पहाड़ों के पीछे गुफा जब मिली तो आप गुफा में जाते हैं, उस गुफा में इस कदर अंधेरा था कि आप लाल और याकूत लेकर गए थे जिनसे कि रोशनी हो जाए। तो आप जब वहां पर पहुंचते हैं तो खिज़र अलैहिस्सलाम पहले जा रहे थे, वो जब पहुंच जाते हैं तो गुफा पार करने के बाद में जब चश्मों की वो करते हैं, कई चश्मे थे, तो आप खिज़र अलैहिस्सलाम जो थे एक चश्मे में उस मछली के पानी के लिए डालते हैं, वो मछली जिंदा होकर के उस पानी में चली जाती है चश्मे में। खिज़र अलैहिस्सलाम मछली के पीछे दौड़ते हैं और उसी चश्मे में गुस्ल करते हैं और पानी खूब पीते हैं। गरज जुल्करनैन जो थे वो चाहे आब हयात की तलाश में चले जाते हैं। आगे देखा कि एक दीवार है किला नुमा, तो उस पर एक काला मुर्ग बैठा था। वो देख करके हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से हजरत सिकंदर जुल्करनैन से कहता है कि हु आर यू, कौन है आप? तो सिकंदर जुल्करनैन कहते हैं कि मैं सिकंदर जुल्करनैन हूँ। तो काला मुर्ग कहता है कि बताइए, पूरी दुनिया पर आपकी हुकूमत है, पूरी जमीन के आप मालिक हैं, लेकिन आपकी हबिश, आपकी चाहत यहाँ तक ले आए कि आप यहाँ तक भी आ गए हुकूमत के लालच में, कहाँ तक आपकी हबिश पूरी होगी? चुनाचे काले मुर्ग से हजरत सिकंदर जुल्करनैन कहते हैं कि ये मेरे लिए और कुछ बता। तो काला मुर्ग जो है एक मुट्ठी मिट्टी रख देता है और कहता है कि सिर्फ इंसान की हबिश और इसके जो भी कुछ चाहत और च्वाइस है वो एक मुट्ठी मिट्टी के बराबर नहीं, क्योंकि आखिर इंसान जो है मिट्टी से पैदा हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। बस यही आदमी कितनी चाहत कर ले, कितनी च्वाइस कर ले, कितनी
अपनी वो हविश कर ले कि मेरे लिए कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन आदमी की हैसियत एक मिट्टी मुट्ठी के बराबर है। चुनाचे ये बात सुन करके हजरत सिकंदर ज़ुल्करनैन रिटर्न होते हैं, वापस आते हैं। तमाम काफिला जब मिलता है, खिज़र अलैहिस्सलाम अपने काफिले को लेकर के वापस आते हैं। तो उस गुफा में जब घोड़े चल रहे थे तो कुछ पत्थरों से रोशनी हो रही थी, तो कुछ पब्लिक ने वो पत्थर उठाए। खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं ये वो पत्थर हैं जिन्हें जो कोई उठाएगा वो भी पछताएगा और नहीं उठाएगा वो भी पछताएगा। जब तमाम फौजी, तमाम सिपाही इकट्ठे होते हैं तो जिन लोगों ने पत्थर जो चुने थे, जिन लोगों ने जो पत्थर उठाए थे, वो देखा तो हीरा जवाहरत, लाल गोहर, सुर्ख याकूत थे। चुनाचे जिन लोगों ने नहीं उठाए वो पछताने लगे कि बताइए हमने क्यों नहीं उठाए, और जिन लोगों ने उठाए थे वो भी पछताने लगे कि हमने और ज्यादा क्यों नहीं उठाए, और क्यों ज्यादा नहीं चुन लिए थे। चुनाचे तमाम सिपाही हजरत सिकंदर ज़ुल्करनैन के इकट्ठे होते हैं। सिकंदर ज़ुल्करनैन ने एक एक मछली सभी के हाथों में मरी हुई दे रखी थी और सबसे कहा कि अपनी अपनी मछलियां दिखाओ। तमाम सिपाही, तमाम अपनी अवाम ने ये अपनी अपनी जो मछलियां थी, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे हाथ में जो मछली थी वो एक चश्मा पड़ा, उस पर मैंने पानी डाला तो वो मछली उसमें चली गई, दरिया में बह के चली गई, चश्मे में। तो मैं उस मछली के पीछे दौड़ा तो मैंने उसमें गुस्ल भी किया और बड़ा सफेद सफाक, बहुत ही ठंडा और शीरीन पानी था, मैंने उसे खूब पी लिया। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की उम्र क़यामत तक है, आप आबे हयात पी चुके हैं, आप क़यामत तक जिंदा रहेंगे। सिकंदर ज़ुल्करनैन इस आबे हयात की तलाश में निकले थे, लेकिन इनके लिए अवेलेबल नहीं हुआ, इन्हें दस्तयाब नहीं हुआ। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो आबे हयात पी लिया और आबे हयात क़यामत तक जिंदा रहेंगे दुनिया में। तो सिकंदर ज़ुल्करनैन तमाम अपनी फौज के लिए वापस आते हैं बैतुल मुक़द्दस में, और वहीं आकर के आप खुदावंद कुद्दूस की इबादत और रियाजत करते हैं। रवायत में आया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है कि आपकी उम्र 500 साल हुई थी। गरज आप खुदावंद कुद्दूस की इबादत और रियाजत करने लगे और यहीं से आप जो है वही मदहूनिए। इसी तरीक़ा से हजरात आज का जो है, आज का जो हम मफहूम है, आज का जो हमारा मकसद है, यहाँ तक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, हजरत सिकंदर ज़ुल्करनैन का वाक़या हमने पेश किया। यहाँ तक जो है वही मेरा मकसद कहने का है। इस एपिसोड के लिए, इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे लोगों के लिए और ज़्यादा मालूमात हो सके इस तारीख़ इस्लाम, इस हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, इस शजरा नसबनामे की, इस इतिहास की जानकारी हासिल हो सके। क्योंकि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ, आई हैव सेड टू यू अगेन एंड अगेन, कि हमारे पास, हमारे अहबाब के पास इतनी फुर्सत नहीं जो कि मजहबी किताबों का मुताला कर सके। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हकीर सरापापुर तफसीर ने शजरा नसब हुजूर का मुरत्तिब किया है। इसका उन्वान, इसका मकसद ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्म मालूमात हो सके, जिससे निजी नॉलेज बढ़े और उनके मुताला में, उनके इतिहासी मुताला में और ज़्यादा इजाफा हो सके। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ आप जो वीडियो सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत मशकूर और ममनून हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू यू, और मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, थैंक यू वेरी मच, मैनी मैनी थैंक्स ऑफ यू, लॉट ऑफ थैंक्स। बाय, सी यू, वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बला।